business of making uh, mall, which is in the business of malls, and they let out the property of malls on rent. The applicant was having a very considerable amount of input tax credit, and they contended it with the government that our intention is not to sell the assets. Our intention is not to sell these assets or property which we have constructed. Our intention is to let out this property on rent. So my final product or my final services are taxable under the GST Act. You will be collecting tax from me on this. So as there is a uh, so by taking here they have quoted on constitutional grounds, because what they have quoted that it is in my right to avail the credit on constitutional grounds. So I should be given the credit. Orissa High Court has allowed credit in that case. Department has contended it in the Supreme Court, though no final decision has came. But those either residing in Orissa or working in Orissa may take benefit of this rule, or even working all over India may take benefit of this rule. One thing I can suggest you, one thing what I can suggest you is, if you are having apprehension that whether credit in these circumstances may be available or not in future, what you can do is avail the credit but not utilize. Avail the credit but not utilize. Okay, avail the credit but not utilize it. You may reverse it or in your GST 3B, but not utilize it, so that in future if there is any circumstances in which this credit is allowed, you may be able to avail this credit, and that is not barred on time restrictions. Please, you can just look into it and you may think about it. Taxes on supply of goods or services paid under Section 10. It is a blocked credit. There is no question of being blocked. Composition dealer don't charge taxes, so there is no question of taking credit. Goods or services or received by a non-resident taxable person, except on goods imported by him, shall not be allowed. So in this case also, credit will not be allowed. Goods or services are both used for personal consumption. This is very important. Suppose I am an employee of the company. I am an employee of the company, and the company has given me a laptop for my personal work. Company has given me a laptop for my official work as well as personal work. So, and I take laptop to my home also. So in this case, it cannot be said that it can be said that it is related to the discharge of my duties. So credit in this circumstances would be allowed. So we have to see that whether it is in relation to the discharge of my duties, or it has been given just like that. For example, a company has given me laptop as a gift, that you take this laptop, I'm very happy with you, you take up with this laptop. In that case, it will be treated as used for personal consumption, or the definition of gift or things like that. In that case, credit will not be. So we have to see very carefully that whether goods or services are both used for personal consumption. There may be scenarios where uh, it is either only for the official consumption, it may be only for the personal consumption. These two scenarios are very easy. Personal consumption not allowed, official consumption allowed. But if there is a transaction which is stuck up between in those two, we have to very carefully examine. And if there is a need of reversal under Rule 42 or Rule 43, do it properly. Another thing, goods lost, stolen, destroyed, written off, or disposed of by the way of gift or free supplies. This is what very this is one provision which is very actually tricky. Now,
circular number 92, I will go back to the circular number 92, where there was an example of samples, where there is an example of samples given. As we all know that pharmaceutical companies give samples to their distributor for the purpose of further distribution. In that case, it is written that as per the definition of, we all know the definition of supply, that supply include all form of supplies of goods or services such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, transfer, rental thereof. So what they have written that goods given by the way of samples doesn't qualify to be a supply. So there is no question of GST on it. Absolutely. But since it has been given as a disposed of as a free supply, then you are required to reverse the input tax. So you can it is a part credit, so you are required to reverse the input tax. There is one entry in schedule 1. Normally a consideration is required for supply, but the exception given in schedule 1 is if there is a permanent transfer or disposal of business asset on which the input tax credit has been claimed, then it will be treated as a supply. Permanent transfer or disposal of business asset on which input tax credit has been claimed, then it is a supply. This is very important. For example, I have given certain, you can say, a watch. I have I'm a I'm in the business of dealing with in watches. I have given a watch to my suppose a near dear friend on his birthday. So question is whether it will be treated as a gift. It will be, if it will be treated as gift, as it is a gratuitous payment. You are you don't expect anything in return. So in this case, input tax credit reversal is required. Push another angle. I may treat it as a permanent transfer or disposal of business asset on which I claim input tax credit. In that case, I will not be debarred with the credit, but I have to pay GST on the supply. So we have to think very carefully that whether there is a permanent transfer disposal of business asset or whether it is a gift. Now, another, there is a, suppose there is a company which has said to all its dealers or sub authorizers that if you do this amount of sales, I will give you a gold coin. If you do this amount of sales, I will give you a gold coin. Now, in certain advanced ruling, one I am remembering, it is in case of Biostat Limited. They asked the advanced ruling authority that I have taken the credit in respect, whether credit will be allowed to me in respect of gold coins. Credit will be allowed to me in respect of gold coins which I have used for uh, those dealers which have achieved their target. What the what advanced ruling authority has said that you are not allowed a credit in this case as it is a gift. But what assessee was saying that it is not a gift. I will not give it to everyone. It is in the nature of my sales promotion. I will give it to only those who achieve my sales target. And obviously, there is a price which has already been embedded or included in the supply already made. So it is used in course and furtherance of business. So credit shall be allowed to me in this. So, though advanced ruling authority has given reverse negative ruling, but to my interpretation, in this case, credit should be allowed. Another thing, goods lost. Word written is lost. Word not written there is loss. There is a difference between lost and lost.
Suppose you are a manufacturer and there is a normal loss in manufacturing. So are you required to reverse the credit? Suppose your input for the raw material was 100, while attaining the output it is brought down to 90. So are you required to reverse the credit in respect of this 10, considering it as a good loss? It is not. It will not be considered as a good loss. It is a normal process or a business loss. Another thing. Suppose you were having a raw material on which you have claimed the input tax. You are having a raw material on which you have claimed the input tax credit, and those raw material were destroyed or lost. In that case, you are required to reverse the input tax credit. But now suppose those raw material were converted into finished goods. Now suppose those raw material were converted into finished goods. So are you required to reverse the credit? As per my interpretation, in this case, it is not written that it has been used or intended to be used in course and furtherance of business in case of goods lost, stolen, destroyed, and goods has already been transformed from a process. So, as per my interpretation, in that case, credit should not be credit reversal requirement may not arise, and credit should be allowed. Though you further see from your end, but to my interpretation, in those cases, credit reversal should not be required. Eligibility and time limit for availing ITC. This is in respect of, as we all already discussed, one in the registered taxable person. ITC amount will be credited to electronic credit ledger. Due date of filing of the return of September or annual return, whichever is earlier. A person who has applied for registration within 30 days of becoming liable to registration and registration granted. A person who has applied for registration within 30 days of becoming liable to register and registration granted, he is eligible to take the credit of input, semi-finished goods and finished goods. Important thing to note here is capital goods credit and input service credit is not applied on the day immediately preceding the date on which he becomes liable to pay tax. A person who is applied for registration within 30 days of becoming liable to registration and registration is granted, he can take credit of input, semi-finished goods, finished goods. Now, one important observation here. Suppose a person who has not applied for registration within 30 days of becoming liable to register, and he has applied for registration. He was earlier required to apply for registration, but he has applied for registration afterwards. In that case, he may be denied credit of input, semi-finished goods and finished goods which were lying in his stock. So be careful in case a person who is required to apply for registration within 30 days, he should apply. He can take credit in respect of all invoices which has issued within 1 year from the date of issue of invoice, from the date he become liable to register. Please be aware. A person who has applied for voluntary registration, उसको जो क्रेडिट मिलेंगे वो यही के मिलेंगे, इनपुट, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स के, और कब से मिलेंगे? इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. तो सपोज वो 23 रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है, तो उसको 22 तारीख को जो भी उसके स्टॉक्स में क्रेडिट अवेलेबल होगा उसका मिलेगा वहां पर. रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू पे कंपोजिशन टैक्स. अगर कोई रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है और उसको कंपोजिशन से बाहर निकलना है, तो उसको किस किस चीज का क्रेडिट मिलेगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको इनपुट्स का भी क्रेडिट मिलेगा, उसको कैपिटल गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा, उसको सेमी फिनिश गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा और उसको फिनिश गुड्स का भी क्रेडिट मिलेगा. कब से? ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट इन विच ही बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9. ठीक है, उस दिन से उसको पूरा जो भी क्रेडिट उसके पास अवेलेबल है, देयर आर रूल्स और फॉर्मूलेस प्रिस्क्राइब फॉर इट कि भाई आपके पास कितना क्रेडिट अवेलेबल है. आई विल नॉट गो इनटू द प्रोसीजरल एस्पेक्ट. इसके लिए आईटीसी 01, 02 फाइल होते हैं.
सीए का सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है अगर 2 लाख से ऊपर का आपका क्रेडिट है। इंपॉर्टेंट इज कब से क्रेडिट मिलेगा, किस चीज का क्रेडिट। जहां पर कोई एग्जेम्प्ट सप्लाई थी आपकी और जो बाद में टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है, तो ऑब्वियसली अगर कोई आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई थी और बाद में टैक्सेबल सप्लाई हो जाती है, तो क्योंकि आप उसके आउटपुट पे टैक्स देंगे तो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिल जाए। ये वही प्रोविजंस हैं। Purchase invoice, detailed of input tax, declaration in form GST ITC 01 to be certified by practicing chartered accountant or cost accountant if the value of the credit claims exceed rupees 2 lakhs। देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूंगा। पहले ये देख लेते हैं आईटीसी चेंज इन टैक्सेबल पर्सन। अगर कोई चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है ऑन अकाउंट ऑफ सेल, मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, लीज, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, उस केस में भी जो आपका आईटीसी यहाँ पर है, प्रोवाइडेड जो कंडीशन है कि ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी बिजनेस शैल बिकम द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो सेटिस्फाइड हो। अगर ये है तो जो भी आईटीसी आपका अनयूटिलाइज्ड है उसका क्रेडिट भी ट्रांसफर हो जाएगा। जीएसटी आईटीसी 02 इस फॉर्म है तो इसमें यूज होगा। ये सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स ऑन विच आईटीसी हैज ऑलरेडी बीन टेकन, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज आपका कैपिटल गुड्स पे आपने कोई क्रेडिट लिया है और वो आज आप सेल कर रहे हैं। सपोज ये एग्जांपल में जैसे परचेज डेट है, मेरी एक लैपटॉप मैंने परचेज किया 1 जनवरी 2015 को, उसकी परचेज प्राइस थी 50,000 और मेरी टैक्स डेट है, मान लीजिए टैक्सेस पेड है 10,000 का, तो सेल डेट मान लीजिए मेरी मई 5 2017 की, तो सेल वैल्यू मान लीजिए 10,000 रुपए की है लैपटॉप की। तो इसमें यह है कि जिस दिन से आपने लैपटॉप खरीदा है उस दिन से अभी तक का आपका जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट 5% पर क्वार्टर के हिसाब से है वो आप लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस केस में जनवरी 1 2015 को आपने लैपटॉप खरीदा था और आपने सेल डेट जो है आपकी मई 5 2017 है, तो आपको ये 10 क्वार्टर होते हैं तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको माइनस करना है। तो आपका अगर 10,000 रुपए का आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, 5,000 रुपए पर क्वार्टर के हिसाब से कम होगा, तो आपको जो बचा हुआ अमाउंट है 5,000 या तो वो देना है या टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू। अब जैसे इस केस में लैपटॉप की सेल प्राइस है 10,000 रुपए, इसका टैक्स आता है 1,800 रुपए, तो 1,800 रुपए या 5,000 जो भी ज्यादा हो वो टैक्स आपको पे करना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ऐसा नहीं है कि आपने सेल वैल्यू पे टैक्स निकाल लिया और आप उस पे टैक्स दे दिए, आपको सेल वैल्यू पे टैक्स भी निकालना पड़ेगा और जिस दिन से आपने क्रेडिट अवेल किया है वहां से आपको माइनस भी करना पड़ेगा और जो बची हुई वैल्यू को आप कंपेयर करोगे और जो भी वैल्यू ज्यादा होगी उसका आपको इनपुट टैक्स का रिवर्सल। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करना चाहूंगा, सपोज आपकी कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट थी, सपोज आपकी कोई सप्लाई एग्जेम्प्ट थी और उस पे कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट, कोई जो इनपुट यूज होते थे उस पे टैक्स वो टैक्सेबल। सपोज आपकी कोई आउटपुट सप्लाई एग्जेम्प्ट थी और जो उस पे इनपुट यूज होते थे वो टैक्सेबल। तो जाहिर बात है अगर इनपुट यूज होते थे और आप एग्जेम्प्ट थे तो आप उस पर टैक्स नहीं देते। लेकिन मान लीजिए आपने वो एग्जेम्प्ट सप्लाई, आपको क्लैरिटी नहीं थी और आपने वो एग्जेम्प्ट सप्लाई को टैक्सेबल सप्लाई मान लिया और आपने उसका, क्योंकि अब आप टैक्सेबल मान रहे हो तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्रेडिट दो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कल को डिपार्टमेंट आपसे, देखिए सेक्शन 32 में लिखा है कि ए नो पर्सन कैन कलेक्ट ए टैक्स विदाउट हैविंग द अथॉरिटी टू कलेक्ट। तो इस केस में आपकी अथॉरिटी तो नहीं थी टैक्स कलेक्ट करने की, लेकिन क्योंकि आपने टैक्स कलेक्ट किया तो आप जमा करोगे। क्वेश्चन ये है कि क्या आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई हो सकता है? तो इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा आंसर नहीं है, डिपेंड करता है कि जो एग्जेम्पशन थी वो कंडीशनल थी या वो मैंडेटरी थी। अगर वो कंडीशनल थी तो हो सकता है एक बार आप बच जाओ, लेकिन अगर वो एब्सोल्यूट या मैंडेटरी एग्जेम्पशन थी
तो हो सकता है उस केस में आप ना बचे। तो अगर कहीं पर आपको लगता है कि कोई ट्रांजैक्शन एग्जम्प्ट भी हो सकती है और टैक्सेबल भी हो सकती है, तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिए। सिर्फ इस वजह से कि आपने किसी चीज का टैक्स कलेक्ट करके डिस्चार्ज कर दिया, आप अपनी लायबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं होते। कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। अब रूल 42 डिस्कस करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाके बहुत संक्षेप में डिस्कस करूंगा। रूल 42 होता है सिंपली कि आपको सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एसटी used exclusively used for purposes other than business T1, amount of input tax credit exclusively used for affecting exempt supplies T2, amount of blocked credit as per section 17(5) T2। तो सिंपल है कि भाई जाहिर क्रेडिट तो वो है जो एक्सक्लूसिवली मेरी टैक्सेबल सप्लाई या जीरो रेटेड सप्लाई से है। तो 50 रुपए का क्रेडिट तो मैं सीधे सीधे ले सकता हूँ। क्वेश्चन अब उनका आता है जहां पर कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट मतलब जहां पर मेरी सप्लाई टैक्सेबल से भी रिलेटेड है और जहां पर मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट से भी रिलेटेड। तो जहां पर मेरी सप्लाई टैक्सेबल से भी रिलेटेड है और जहां पर मेरी सप्लाई एग्जेम्प्ट से भी रिलेटेड है, वहां मुझे बाइफरकेशन। अब इस चीज को आप वहां से कनेक्ट कीजिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया था कि सपोज मेरी एक चीज की कमोडिटी में दो जगह यूज करता हूँ, एक टैक्सेबल है एक एग्जम्प्ट है, लेकिन मुझे इनवॉइस लेवल पे ही मान लीजिए समझ आ जाता है कि मेरी ये टैक्सेबल में यूज होगी या ये मेरी एग्जम्प्ट में यूज होगी, तो वहां मुझे कॉमन क्रेडिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड है। मैं क्रेडिट ही नहीं लूंगा, मैं सिर्फ टैक्सेबल वाला लूंगा। तो थोड़ा आपका रिकॉर्ड मेंटेनेंस का काम इसमें हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा है तो प्लीज इसको यूज करिए या देखिए, ये आपको हेल्प। तो जो बचा हुआ क्रेडिट है वो क्रेडिट में आपके दो पोर्शन हो जाएंगे, एग्जेम्प्ट सप्लाई, टैक्सेबल सप्लाई। ये एक्सरसाइज आपको हर महीने करनी है और हर महीने करने के बाद ये एक्सरसाइज आपको हर साल के सितंबर के बाद भी करनी है। मतलब आपका सितंबर के बाद आप टोटल करोगे कि आपका साल भर का एग्जाम टर्नओवर कितना था, टैक्सेबल टर्नओवर कितना था। जाहिर बात है आपने एग्जाम टर्नओवर का रिवर्सल किया होगा, तो अगर रिवर्सल ज्यादा हो गया है तो आप अपना क्रेडिट दोबारा से ले लेंगे, रिवर्सल कम हो गया है तो आप क्रेडिट रिवर्सल ज्यादा। यही नटशेल में है, ये एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, नटशेल में ये। अब ITC फॉर द रूल 43 दैट इज इन द मैटर ऑफ कैपिटल। कैपिटल गुड्स के केस में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज उन्होंने करी वो ये है कि हर कैपिटल गुड्स की लाइफ मान ली 60। मतलब हर कैपिटल गुड्स, चाहे प्लांट एंड मशीनरी हो, चाहे आपका फर्नीचर हो, सबकी लाइफ 60 मंथ। उनका कहना यह है कि भाई 60 मंथ हमारे हिसाब से लाइफ है और हर मंथ आप डिवाइड बाय 60 करके क्रेडिट करो। अब इसमें भी सिंपल है, जहां आपको क्रेडिट, जहां आपका कैपिटल गुड्स टोटल टैक्सेबल से रिलेटेड है बिल्कुल क्रेडिट ले लीजिए, जहां एग्जेम्प्ट से रिलेटेड है बिल्कुल क्रेडिट मत लीजिए, जहां जीरो रेटेड से रिलेटेड है क्रेडिट ले लीजिए। इसके बाद अगर कोई गुड्स बचता है जो आपका टैक्सेबल से भी रिलेटेड है और एग्जेम्प्ट से भी रिलेटेड है, वहां आपको प्रोपोर्शनेट रिवर्सल करना पड़ेगा हर महीने। अब इसमें एक चेंज आया है बाय द वे ऑफ रिसेंट नोटिफिकेशन। वो चेंज क्या है मैं वो आपको समझा देता हूँ। मैं संक्षेप में समझाना चाहूंगा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, पहले क्या था कि सपोज आपने सितंबर में कोई गुड्स, वो अक्टूबर में कोई गुड्स खरीदे, अक्टूबर में आपने कोई गुड्स खरीदे सपोज 6 लाख रुपीज के, सॉरी उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट था 6 लाख रुपीज, और सपोज उसको आप क्या बोलते हैं, वो आपका एग्जाम्प्ट में यूज होगा, ठीक है।
अब आपका अगर सिर्फ एग्जाम में यूज होता था, जाहिर बात है आप उसके क्रेडिट नहीं होते। अब मान लीजिए 1 जनवरी से वो एग्जाम में भी यूज होने लगा और टैक्सेबल में भी यूज। तो अब पहले क्या होता था कि 6 लाख रुपए डिवाइड बाय 60, तो 10,000 रुपए पर महीने का क्रेडिट है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आपने एग्जाम में यूज किया, तो पहले वो बोलते थे 5,70,000 रुपए का क्रेडिट आप अपनी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो, 3B में ले लो। अब क्वेश्चन ये था कि 5,70,000 का तो मैं क्रेडिट ले लूंगा, और अब जो रिवर्सल करूंगा वो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5,70,000 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय जो भी मेरा एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल का प्रोपोर्शन। इससे हो क्या रहा था, रिवर्सल कम हो। रिवर्सल कम ऐसे हो रहा था जैसे मैं 5,70,000 डिवाइडेड बाय 60 करूंगा तो वो अमाउंट आएगा, जाहिर बात है एक कम अमाउंट आएगा, क्योंकि मैं 6 लाख डिवाइडेड बाय 60,000 करता 60 करता, तो वो अमाउंट हर महीने का मेरा कम कम रिवर्स होगा। गवर्नमेंट को ये गलती समझ में आई, रिसेंटली उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें लिखा कि अब इसका प्रोसेस चेंज कर दिया गया है। अब आप क्या करोगे, जिस दिन से आपके टैक्सेबल में यूज होगा आप पूरा क्रेडिट ले लो। मतलब इस केस में अगर मैंने कोई असेट 1 अक्टूबर को खरीदा था और वो 1 अक्टूबर को असेट एग्जेम्प्ट था और 1 जनवरी को वो टैक्सेबल हो जाता है, तो मैं 1 जनवरी को पूरा क्रेडिट ले लूंगा 6। लेकिन एग्जेम्प्ट तो जो यूज हुआ था उसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा, तो 30,000 रुपए में रिवर्स कर दूंगा। लेकिन जो अब हर महीने का कैलकुलेशन निकलेगा रिवर्सल का, वो 6 लाख डिवाइड बाय 60 निकलेगा, ना कि 6 लाख 5,70,000 डिवाइड बाय 60, जिससे कि क्रेडिट अमाउंट जो रिवर्स का होगा वो ज्यादा। तो ये मेनली कैपिटल गुड्स से रिलेटेड था रिवर्सल का। आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स और समझ सकते हैं, और अगर कुछ क्वेरीज हो तो भेज सकते हैं अरुण जी को, वी विल कॉन्टेक्ट। फिर उसके बाद आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉब वर्क। जॉब वर्क में सिंपल बोला गया है कि अगर कोई जॉब वर्कर है तो जॉब वर्कर के केस में आप अगर डायरेक्टली कोई जॉब वर्कर को मटेरियल चला जाता है, आप उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं कैपिटल, बट कंडीशन इज कि अगर 1 साल के अंदर वो जॉब वर्कर से मटेरियल वापस नहीं आता, इन दैट केस इट विल बी डीम्ड दैट you have supplied him the good already on the date on which you have sent him the material। अगर वो 1 साल से ज्यादा हो जाता है, और उस केस में आपको जो भी आईटीसी आपने अवेल किया है वो तो देना ही देना पड़ेगा, साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो कैपिटल गुड्स के केस में ये 3 साल की कंडीशन है, और जॉब वर्कर को इनपुट के केस में ये कंडीशन 1 साल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब वर्कर के केस में अभी समय नहीं है, लेकिन जॉब वर्कर की जो डेफिनेशन दी है उसको बहुत ध्यान से देखिए कि वेदर इट विल क्लासिफाई अंडर द डेफिनेशन ऑफ जॉब वर्कर। कई बार ऐसा हो रहा है कि मेजर मटेरियल ही जॉब वर्कर के पास है, मतलब आप जो काम करवा रहे हो उसका मेजर मटेरियल ही जॉब वर्कर के पास हो है, और हम बोल रहे हैं वो जॉब वर्क है, वो जॉब वर्क नहीं होगा, इट इज ए सप्लाई। तो प्लीज जॉब वर्कर के केस में बहुत केयरफुल हो। एक कंसेप्ट जो लास्ट में है हमारा सेक्शन इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड, दैट इज द मैटर ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। व्हाट इज इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर? मैं आपको इसको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूंगा तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगा। सपोज मेरा, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, मैं भोपाल का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं महाराष्ट्र गया ऑडिट करने के लिए। अब मैं महाराष्ट्र बहुत रेगुलर जाता हूँ ऑडिट करने के लिए, और महाराष्ट्र में होटल्स में ठहरता हूँ। अब क्वेश्चन ये है, महाराष्ट्र में जब मैं होटल्स में ठहरता हूँ तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर जो कि होटल है वो महाराष्ट्र है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो भी महाराष्ट्र है, he will charge CGST, SGST, and we all know that credit of CGST, SGST of the state of Maharashtra cannot be taken in the state of Madhya Pradesh। अब मेरे पास रेमेडी क्या है? तो रेमेडी ये है मेरे पास कि अगर मेरे ट्रांजैक्शन ऐसे ज्यादा हैं तो आई कैन गेट रजिस्टर्ड एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। व्हाट वर्क इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर डू? वो कोई सर्विसेज खुद डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो कोई सर्विसेज डायरेक्टली खुद प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है ऑन, मतलब वो आप ये समझ लीजिए उस केस में आप महाराष्ट्र के होटल में अपने ISD का
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर देंगे, वो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर को जीएसटी चार्ज करेगा और वो आईएसडी डिस्ट्रीब्यूटर आपको बाय द वे ऑफ आईएसडी इनवॉइस क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। दिस इज द बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। इसमें बेसिकली प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ये लिखे हुए हैं कि सीजीएसटी एसजीएसटी का जो इनपुट है वो अगर सेम स्टेट में है तो सीजीएसटी एसजीएसटी की तरह कर सकते हैं, और या अगर दूसरे स्टेट में है तो आईजीएसटी की तरह कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट उस कंटेक्स्ट में जहां पर आपका कोई ऑफिस नहीं है लेकिन आपका बहुत सारा सर्विसेज रिलेटेड क्रेडिट ड्यू टू प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन एसजीएसटी सीजीएसटी के तहत, वहां पर ये आपको कंसेप्ट बहुत काम करेगा और बहुत हेल्प। डिफरेंस बिटवीन, कई लोग पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड ए क्रॉस चार्ज इनवॉइस। बेसिकली क्रॉस चार्ज इनवॉइस क्या होता है, अगर दो डिस्टिंक्ट पर्संस हैं, सपोज मेरा ही एक ऑफिस भोपाल में है और मेरा ही एक ऑफिस महाराष्ट्र में एमपी में है, एक मेरा ही ऑफिस एक महाराष्ट्र में, मैं एमपी के ऑफिस से महाराष्ट्र को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ या महाराष्ट्र का ऑफिस मेरी मध्य प्रदेश के ऑफिस को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उन केसेस में क्रॉस चार्ज का इनवॉइस बनेगा। क्वेश्चन ये है क्या जैसे ये होटल वगैरह के केसेस हैं यहाँ पर क्रॉस चार्ज का इनवॉइस बना के भी हम कर सकते हैं, मतलब सपोज मेरा महाराष्ट्र का एक ऑफिस है, वहाँ मेरा नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी है, क्योंकि क्रेडिट मैं नहीं ले सकता, वो महाराष्ट्र के ऑफिस ने एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट लिया, लेकिन अब वो क्रेडिट अपनी बुक्स में रख नहीं सकता क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था इट शुड बी रिलेटेड इन कनेक्शन विद हिज बिजनेस, तो उसको क्रेडिट मुझे देना है। तो क्या वो मुझे एज ए बिजनेस ऑक्सिलरी सर्विसेज की उसने मेरे ब्याह पे होटल बुकिंग का काम किया, क्या मेरे को कोई इनवॉइस रेज कर सकता है? देखिए इसमें डाउट्स हैं, एग्जैक्ट नहीं है, मेरे हिसाब से कर सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे ब्याह पे ये सब काम कर रहा है, तो अगर वो कोई 5% या 10% वैल्यूएशन रूल्स के मुताबिक कोई एडिशनल चार्ज लेके करता है तो कर सकता है। दो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस भी काम करेंगे जो आप डेप्थ में पढ़ सकते हैं, वी विल डिस्कस इट सम अदर। So this was the concept of input service distributor. रूल 36(4) ये हम सबको मालूम है, जैसे कि अभी की तारीख में हम 36(4) के मुताबिक सिर्फ 10% जो हमारा 2A में क्रेडिट दिख रहा है उससे ज्यादा क्रेडिट ले सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज है दैट इज एलिजिबल क्रेडिट। बहुत ध्यान रखिए, वर्ड यूज इज एलिजिबल क्रेडिट। सपोज किसी सप्लायर ने 31 मार्च को कोई सेल कर दी, सप्लायर तो अपनी बुक्स में दिखाएगा भाई 31 मार्च को उसने सेल करी है, वो जीएसटी 1 में दिखाएगा, लेकिन मेरे पास वो गुड्स 31 मार्च को आए नहीं, मेरे पास वो गुड्स आए 1 अप्रैल को, तो क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूँ? मेरे मुताबिक मार्च वाले दिन भले ही मेरे 2A में दिखेगा लेकिन मैं क्रेडिट नहीं ले सकता क्योंकि उसकी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट आई शुड हैव रिसीव्ड द गुड्स ऑफ सर्विस, so it was not an eligible credit for me as per the terms and conditions of section 16 subsection 2. So please bear in mind word important is eligible credit। ऐसा नहीं होगा कि 2A में 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिख रहा है, 1 करोड़ रुपए का क्रेडिट का 10% लगा है, 1 करोड़ 10 लाख पूरा क्रेडिट हो गया, ऐसा नहीं होगा। You have to identify इस 1 करोड़ में से कितना इनएलिजिबल क्रेडिट है सेक्शन 17(5) के मुताबिक, कितना क्रेडिट आपका ड्यू टू दीज रीजंस, मे बी इनवॉइस रेज नहीं हो, रिसीव नहीं हुआ, मे बी आपको गुड्स रिसीव नहीं हुए, प्लीज ध्यान रखिए, अदरवाइज इट में लैंड यू इनटू ट्रबल। तो ये इसका प्रोसीजरल एस्पेक्ट है 36(4) के। ये सेक्शन 86 ए रूल 86 ए नया आया है, द क्रेडिट, दिस इज अ वेरी ड्रैकोनियन प्रोविजन, दिस इज वेरी डेंजरस प्रोविजन, जहां लिखा गया है कि अगर कोई इनवॉइस इशूड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, 1 मिनट, issued by a registered person who is found to be non-existent or not to be conducted any business from any place for which registration has been obtained, then in that cases credit may be denied. This is very draconian provision क्योंकि सारी conditions जो रख दी गई हैं वो रख दी गई हैं रेसिपिएंट के ऊपर कि अगर आपने क्रेडिट लिया और कल को वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मिला और प्रॉपर नहीं हुआ तो आपका क्रेडिट डिनाई कर दिया। To the best of my knowledge,
टू द बेस्ट ऑफ माय ओपिनियन, मेरे केस मुझे जहां तक लगता है, अगर हम सेक्शन 16 की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें से एक कंडीशन मुश्किल है कि उन्होंने टैक्स पे कर दिया हो, तो मेरे हिसाब से अगर मेरे पास इनवॉइस प्रॉपर है, मैंने अपना टैक्स पे कर दिया है, अपनी रिटर्न प्रॉपरली, अपना मतलब रिटर्न फाइल कर दी है अपनी, मेरे पास गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए, इस बेसिस पे दो मुझे मैटर्स आएंगे लिटिगेशंस के लिए, मेरे को नोटिस आएंगे लिटिगेशंस के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता इस बेसिस पे अगर मैंने रीजनेबल ड्यू एंड केयर लिया है कि मुझे क्रेडिट देना है। देयर आर इनफ केस लॉस फॉर इट, देयर आर इनफ things which are in support of it, but as GST is a new tax, whether all those judicial pronouncements in the various acts would be applicable or not, that has to be seen. But to my opinion, if we have taken due care in respect of all these things, credit may not be good. So I will finish this by saying that thank you Arunji, thank you all the participants for having me here and having such a patient listening for last 2 hours. Thank you, Arun. 1 minute, sir. Yeah. So I'm requesting every participant. एक बार आप स्क्रीन स्टॉप कर देंगे सर एक बार? वो बड़े पैशन से, बड़े पैशनेट तरीके से समझाते हैं कोई भी चीज। इसी के कारण मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था और आज उन्होंने ये लेक्चर डिलीवर किया। हम गोइंग फॉरवर्ड भी इसी तरह के लेक्चर अरेंज करते जाएंगे। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं वोट ऑफ थैंक्स के लिए, या फिर कुछ इस लेक्चर के एप्रिसिएशन के रिगार्ड में अगर आप बोलना चाहें तो आप मुझे चैट कर दीजिए, मैं 2 या 3 नाम पिक करूंगा एंड उसके बाद में फिर आज का ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग विद, एक मिनट में नाम देख लेता हूं, अभय कुमार सिन्हा जी, काइंडली कंफर्म। वॉइस है इसके लिए, वो अपने आप को मतलब बोल के नहीं कन्वे कर पा रहे हैं। एनीवे, नो इश्यू। नीलकांत शर्मा जी ने कहा बहुत क्लियर प्रेजेंटेशन था। नेहा पांडे जी ने कहा है कि बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी, आई एम गेटिंग समथिंग न्यू अपडेट बाय दिस लेक्चर। अंशुल जी ने कहा है प्लीज कन्वे अवर थैंक्स ऑन बिहाफ ऑफ पार्टिसिपेंट टू द फैकल्टी, इट वाज रियली a handful session and information too in the subject. The class was सुरेंद्रन साहब ने कहा है कि class was really informative and the wonderful presentations. So बहुत बहुत धन्यवाद on behalf of all educating team. I really giving my gratitude to Piyush ji for for providing the time and the wonderful sessions. Thank you sir. सर एक दो बात बोलना चाहूंगा, बोल सकता हूँ एक दो बात? जी हाँ, प्लीज। सर सारे पार्टिसिपेंट से एक तो पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सारे पार्टिसिपेंट का इतनी अच्छे से सुनने के लिए। एक चीज बोलना चाहूंगा कि जीएसटी इज नॉट ए लॉ की जो बिल्कुल नया लॉ। जीएसटी एक ऐसा लॉ है जो बहुत सारे गवर्नमेंट के जो पास एक्सपीरियंसेस हैं, चाहे वो वैट के हों, चाहे सर्विस टैक्स के हों, चाहे एक्साइज के हों, उन सब पास एक्सपीरियंसेस को मिलके बनाया गया। तो कई बार लोग सोचते हैं कि जो पास की चीजें हैं, जो पास के जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, वो बिल्कुल नल एंड वॉइड है। ऐसा नहीं है। हमको जीएसटी पढ़ने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम दूसरे एक्ट की रेफरेंसेस भी यूज करें, वेदर इट इज ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वेदर इट इज ए मोटर व्हीकल्स एक्ट, वेदर इट इज एनी अदर एक्ट। तो सिर्फ बेयरली देखिए, लॉ के प्रोविजंस अकेला पढ़ने से हमको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, अगर हमको उसको नेक्स्ट लेवल लेके जाना है तो हमको और भी चीजें अपने उसमें कंबाइन करनी पड़ेगी। तो दिस वाज सजेशन फ्रॉम माय एंड कि हमको बाकी चीजें भी आइसोलेशन में जीएसटी को अकेला नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल डेफिनेशन है सेल आपका सप्लाई का, कि सप्लाई इंक्लूड सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल दे रहा हूं। अब इट इज जो डेफिनेशन चालू होती है कि सप्लाई सच है, तो कई बार ये कॉनोटेशन जाता है कि भाई हर चीज सप्लाई हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर चीज सप्लाई है, हर चीज जरूरी नहीं है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग है,
मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट ए सप्लाई। अगर हम देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डजंट क्लासिफाई इनटू द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, तो वी हैव टू गो बियॉन्ड सर्टेन थिंग्स अगर हमको और क्लैरिटी चाहिए। बस मैं यही कहना चाहूंगा। चलो सर, ग्रेट सर, थैंक यू वंस अगेन, विल बी इन टच एंड डेफिनेटली कई पार्टिसिपेंट ने रिक्वेस्ट की है कि सर इस टाइप के लेक्चर हमें और अरेंज करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल And बिल्कुल कोशिश स्पेशली शेयर मार्केट के रिगार्ड में एक रिक्वेस्ट आई है कि हाँ। सर हम शेयर मार्केट के बारे में भी आपसे सुनना चाहते हैं। तो बताइए सर शेयर मार्केट का कब करना है, बताइए मैं करता हूँ। श्योर, हम एक बार डिस्कशन कर लेंगे एंड देन विल फिक्स द डे। ठीक है, मेरा शेयर मार्केट में सिर्फ एक ये है सर कि सबसे ये बोलिएगा कि अपनी पर्सनल जो ये है कि यहाँ इन्वेस्ट किया, यहाँ इन्वेस्ट किया, नुकसान हो गया, वैसा नहीं। वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस। देखिए एक मैं एक छोटा सा चीज बताऊं कि अभी लास्ट के 20-25 दिन से एक चीज का मुझे एहसास हुआ कि ये लाइफ बुरी नहीं है, अच्छी है लाइफ, बुरी नहीं है लाइफ। घर पे रहना बुरा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एक ही चीज की वजह से काम करना पड़ता है, वो है पैसा। ठीक है, तो अगर मैं अपनी अपनी इसी लाइफ में या जो अभी कर रहा हूँ उसमें इस तरीके से कर सकूं कि आई कैन बिल्ड असेट फॉर मी बाय आई कैन बिकम वेल्दी, नॉट बीइंग रिच। रिच एंड वेल्दी आर टू डिफरेंट कनोटेशन एंड कंसेप्ट। तो अगर मैं ऐसा असेट बना सकूं जो फ्यूचर में मुझे रिटर्न दे सकें,